Good morning, students. Today's topic of our discussion is choppers. In today's lecture, the topics covered will be introduction to choppers, then principle of step down choppers, classification of choppers, and then application of choppers. Now, first of all, what do we mean by chopper? Chopper is one of the converters used in the power electronics. In the power electronics, we are basically having four types of converters. We convert from AC to DC, which is called control rectifier. We convert from DC to AC, which we call inverter. We convert from DC to DC, which is chopper, and we also have AC to AC conversion, that is cycloconverter. So when we are saying we convert a DC to DC, what do we mean by that conversion from DC to DC? कहाँ ज़रूरत पड़ जाती है हमें चॉपर्स की, या ये कॉन्सेप्ट क्या है डीसी को डीसी में कन्वर्ट करना? जो चीज़ ऑलरेडी डीसी है उसको हम किस चीज़ में कन्वर्ट करते? इसको अगर हमने समझना है देन वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल द एप्लीकेशन वेयर डू वी रिक्वायर सच थिंग. सो इफ यू see the DC motors, it can be any particular motor, it can be separately excited motor, it can be shunt motor, it can be series motor. The speed of the DC motor is proportional to the flux and it is proportional to the armature current. So if we are talking about, say, separately excited So if we are talking about a separately excited DC motor, now we know that the speed will be proportional to flux and armature current. Now because it is a separately excited motor, a fixed amount of voltage or a fixed current will flow through the field winding. The flux produced will be constant because the current which is flowing here, say the current is IF, because this IF is constant. and why IF is constant? यहाँ पे कोई चीज़ वेरिएबल नहीं है. अगर इसकी इम्पिडेंस हम लगा लेते हैं, say RF is the impedance offered by the field winding, then what will be the current? Current IF will be VF divided by RF, where VF is the voltage applied to the field winding, RF is the resistance offered by the field winding. So because VF is constant, RF is constant, so this quantity will be constant. So if this quantity is constant, the flux phi will be constant, or our speed is directly proportional to armature current. Okay, so that means if you want to vary the speed of this motor, we have to do some mechanism. By some mechanism we have to change this armature current. Now अब अगर हम conventional method देखें of speed control, what we used to do in that is, we connect a supply voltage, say Vs, this is the supply voltage connected to the armature, and in series a variable resistor is connected. So what will be the armature current? Armature current will be equal to the voltage divided by the total resistance. Now this Vs is fixed. जो बैटरी आपने लगाई है वो फिक्स है, वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज ही देगी. दैट मीन सप्लाई वोल्टेज इज फिक्स. मोटर जो आप यूज़ कर रहे हो वो जिस टाइम पे आपने उसकी वाइंडिंग की उस टाइम पे उसकी आर्मेचर रेजिस्टेंस फिक्स हो गई है. दैट आल्सो कैन नॉट बी चेंज्ड. So only thing which can change is this resistance R. So if you want to increase IA, we have to decrease this value of R. If you want to decrease IA, we have to increase this value of R. So if R increases, IA will decrease, so speed will decrease. If R decreases,
Ia will increase and so the speed will increase. Okay, this method is quite correct. We can control the speed by this method. We can control the speed by varying this resistance. जनरली आपने लैब में किया होगा, रियोस्टैट को कम ज़्यादा किया होगा रियोस्टैट से वैल्यू, तो आपकी मोटर की स्पीड अगर आप टैकोमीटर से मेज़र करो कम ज़्यादा होगी. बट व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड इज़, द डिसएडवांटेज इज़ दैट अ फिक्स अमाउंट ऑफ पावर इक्वल टू IA स्क्वायर R. दिस अमाउंट ऑफ पावर इज़ वेस्टेड. एक रेजिस्टेंस के अंदर अगर करंट IA फ्लो कर रहा है तो उसमें कितनी पावर वेस्टेज हो गई, IA स्क्वायर R. दिस पावर इज वेस्टेड. ये हमारे को कोई यूजफुल नहीं है, इसमें ये एज ए हीट लॉस निकल जाएगी. वी वांट टू प्रिवेंट दैट. हम एफिशिएंटली यूज़ करना चाहते हैं, तो अगर हम एफिशिएंटली यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, हमारे पास जो मैकेनिज्म होना चाहिए वो मैकेनिज्म है हमारे पास कि इंस्टेड हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल सप्लाई होनी चाहिए जिसको आप कम ज़्यादा कर सको. ओके, सो अगर हमारे पास वेरिएबल सप्लाई हो तो हमारे पास क्या होगा, दिस IA विल बी इक्वल टू, से दिस इज V डिवाइड बाई RA. नाउ दिस RA इज फिक्स. इफ V increases I will increase, and if I increases speed will increase. If V decreases current will decrease, and so will be the speed. तो यहाँ पे अब हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आती है कि हमें जब मोटर की स्पीड कम या ज़्यादा करनी है, हमें ये सप्लाई वोल्टेज कम या ज़्यादा करनी पड़ेगी. सो हेयर कम्स द चॉपर्स. चॉपर क्या करता है, चॉपर इनपुट में लेता है एक फिक्स DC और आउटपुट में देता है वेरिएबल DC. ओके, तो अब होगा क्या, हमने फिक्स DC ली और हमें वेरिएबल DC मिली, और इसके अंदर हमारा जो पावर है वो कहीं वेस्ट नहीं होगी. या हम पावर को कंज्यूम करेंगे या हम कंज्यूम नहीं करेंगे, नो पावर विल बी वेस्टेड एज हीट. सो दिस इज चॉपर्स. ओके, so chopper is a static device also known as DC to DC converter, and a variable DC voltage is obtained from a constant DC voltage source in the case of a choppers. Choppers are widely used for, जैसे हमने अभी एप्लीकेशन में देखा, फॉर द मोटर कंट्रोल, और इसको हम किसी भी मोटर के लिए कर सकते हैं. इट कैन बी सेपरेटली एक्साइटेड, इट कैन बी सीरीज मोटर, इट कैन बी शंट मोटर. जो भी चीज़ हमारी DC से चलती है, जैसे आजकल जो ये बैटरी ऑपरेटेड आ रही हैं हमारे पास स्कूटीज, यो बाइक्स, उनके अंदर वी मेक यूज़ ऑफ दिस चॉपर्स. हम क्या करते हैं, हम जब उसको कंट्रोल को, एक्सेलरेटर जो है उसको कम ज़्यादा करते हैं, व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग, वी हैड बीन सप्लाइड विद ए फिक्स बैटरी, लेकिन उसकी जो आउटपुट है वो चॉपर पर जाती है. चॉपर की आउटपुट हमारी मोटर को कनेक्टेड है. तो जब हम उसकी एक्सेलरेटर को कम ज़्यादा करते हैं तो हम चॉपर की आउटपुट को कम ज़्यादा कर रहे हैं. अगर चॉपर की आउटपुट ज़्यादा होगी तो आर्मेचर करंट ज़्यादा होगा और स्पीड मोटर की बढ़ेगी. ओके, सो चॉपर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर रीजेनरेटिव ब्रेकिंग. Concept of regenerative braking we will be studying subsequently in this particular lecture only. So thyristor converters offer greater efficiency and faster response, lower maintenance and smooth control as compared to the conventional systems. Conventional system क्या है, जो हम static systems use करते हैं, जैसे रियोस्टैट वाली एग्जांपल मैंने आपको बताई, ये कन्वेंशनल सिस्टम है. उसमें क्या है, पावर वेस्ट हो जाती है, एफिशिएंसी उतनी बढ़िया नहीं है. यहाँ पे एफिशिएंसी है, वहाँ पे फास्टर रिस्पॉन्स नहीं है. यहाँ पे चॉपर के साथ आपका रिस्पॉन्स फास्ट मिलेगा. ठीक है, सो दीज आर द एडवांटेज ऑफर्ड बाय चॉपर्स इज ओवर द कन्वेंशनल सिस्टम इज हाई एफिशिएंसी, फास्टर रिस्पॉन्स, लो मेंटेनेंस एंड स्मूथ कंट्रोल. नाउ classification of choppers. Choppers can be classified in many ways. One classification of choppers is that we have two types of choppers, step down chopper and step up chopper. Like we have step down transformer and step up transformer. What is the basic phenomena? If the output voltage is
increased. If the load voltage is greater than the input voltage or the supply voltage, then that particular chopper, they are called step up choppers. If the load voltage is, the voltage applied across the load is less than that of the input voltage, they are called step down choppers. This is one classification of chopper. Similarly, we also have AC choppers and DC choppers. If for getting variable DC at any particular instant in between the input and output, we are converting or we are making use of AC, then they are called AC choppers. That means हमने fixed DC को पहले AC में convert किया using an inverter, then उस AC को हमने फिर DC में convert किया. If we are going for that sort of mechanism, those choppers, they are called AC choppers. DC choppers जो आपका DC source से DC में convert करते हैं, कहीं पे भी बीच में AC system नहीं आता, they are called DC choppers. So that is also one classification. One more technical classification is depending upon the quadrant of operation, ki in which quadrant our chopper will be operating. So we have class A choppers, class B choppers, class C choppers, class D choppers and class E choppers. That is the best and correct technical specification is from class A to class E, that we will be discussing in today's lecture. But first of all, we have two types of choppers, step up and step down. And step down means output voltage will be less than the input voltage. Step up means the output voltage or the load voltage, it will be greater than that of the input voltage. So this is the principle of step down chopper. In this, V voltage is connected and R is our, it's just explained with the help of a resistive load. So what's going to happen in this particular circuit is, now this is your general circuit. V is the input voltage, R is the load and T1 is the thyristor. So the T1 can be switched on or T1 can be off. So when the thyristor is on, it can be replaced by a, समझने के लिए, in order to understand the operation, when a thyristor is on, we can replace it by a close switch, and when thyristor is off, we can replace it by an open switch. ताकि यहाँ से हमें clear हो जाए. So when the SCR is on, when the thyristor is on, what is the voltage across the output? The complete voltage, input voltage is obtained as at the output. जो voltage हमने यहाँ लगा रखी है वो as it is हमें load के ऊपर मिलेगी. What is the voltage across this load? It is same as that of जो हमने voltage लगा रखी है. So V0 will be equal to V. And when this is off, when the thyristor is off, what will be the voltage across it? Connection complete नहीं है, that means output voltage will be 0. Okay, that means when the thyristor is on, अब में जो voltage मिलेगी वो V मिलेगी. जब हमारा thyristor off है, हमें कोई voltage नहीं मिलेगी. अगर हम इसको waveform के हिसाब से देखें, तो this is the input voltage. Input voltage is V, and say this is on time. इस thyristor को हमने on किया, फिर हमने off किया, on किया, off किया. So during the on time, output voltage will be equal to V. For this much time, output voltage will be V. For off time, output voltage will be 0. Again for on, output voltage will be V. For off, the output voltage will be 0. Now
व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज इफ वी टेक द एवरेज वोल्टेज, मतलब क्या है हमारे पास, जितने देर तक थायरिस्टर ऑन रहेगा आउटपुट पे V वोल्ट मिलेगी, जितनी देर के लिए ऑफ रहेगा 0 वोल्ट मिलेगी. सो इधर V और 0, V 0 V 0 इस टाइप की आपको वोल्टेज मिलेगी. लेकिन अगर हम इसकी एवरेज वैल्यू की बात करें, सो एवरेज वैल्यू कितनी होगी, एवरेज वैल्यू विल बी समवेयर हेयर, दैट मीन्स इट विल बी एट सम पॉइंट अबव 0 एंड बिलो V. ओके, सो इसको अगर हमने कि एवरेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझना, यू कैन जस्ट हैव कि यू आर गोइंग फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली, आप जिस भी व्हीकल पे जा रहे हो, से दैट व्हीकल आप एक कांस्टेंट स्पीड पे चलाते हो या आप रुक जाते हो. दैट मीन्स इधर यू आर ड्राइविंग योर कार एट 100 किलोमीटर पर आवर और यू आर एट रेस्ट. Say you take rest at 4-5 places. So the distance covered, say the distance of say 250 kilometers, you were covering in 50 kilometers per hour, and you all together आपने 3 घंटे का बीच में रेस्ट लिया तो आपको 8 घंटे लग गए. So 8 hours. So 50 की एवरेज से आप आ रहे थे, जिस टाइम आप चल रहे थे 50 से चल रहे थे, अदरवाइज आप रुके हुए थे, तो आपकी एवरेज स्पीड जो होगी वो 50 से कम हो जाएगी. ओके, सो आपने कितना 250 का डिस्टेंस कवर किया इन 8 आवर्स. सो इट विल बी समवेयर 20-25 किलोमीटर्स के आसपास आपकी एवरेज स्पीड रह गई. तो वही चीज़ यहाँ पे है कि या आपकी वोल्टेज V है या आपकी वोल्टेज 0 है, या V है या 0 है, या V है या 0 है. दैट मीन्स एवरेज वोल्टेज जो रहेगी वो क्या रहेगी, वो कम हो जाएगी. इट विल बी between V and 0 because it is less than the input voltage. We say that it is a step down chopper. भी जो एवरेज वोल्टेज हमें मिल रही है वो कम मिल रही है. अब जो मेन चीज़ जो हमने देखनी है, हमें क्या चीज़ चाहिए थी, हमें चाहिए थी वेरिएबल. तो अब मैंने अपना ये ऑन टाइम रखा हुआ था, दिस वाज माय ऑन टाइम एंड दिस वाज माय ऑफ टाइम. नाउ मेरे पास ये एवरेज वैल्यू आ रही थी. अगर मैं अपना ऑन टाइम कम कर लेता हूँ, ऑफ टाइम बढ़ा लेता हूँ, so what I am doing is I had reduced my on time, I had increased my off time as compared to this. यहाँ पे एवरेज वैल्यू इतनी आ रही थी, यहाँ पे एवरेज वैल्यू क्या होगी, ओके. सो यहाँ पे एवरेज वैल्यू और कम हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस. ठीक है, ये भी V से कम है, V और 0 के बीच में, यहाँ पे भी V और 0 के बीच में ही है, लेकिन ये स्टिल और कम है. तो हमने अगर दोबारा से रिकॉल करें जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था, हमें चॉपर्स में हम क्यों गए, क्योंकि हमें वेरिएबल DC चाहिए थी. यहाँ पे हमें वो चीज़ मिल रही, यहाँ पे पहले एवरेज वैल्यू थी से यहाँ पे V1, यहाँ पे एवरेज वैल्यू है V2. हमने सिर्फ क्या करना है, हमने अपने थायरिस्टर की ट्रिगरिंग को कंट्रोल करना है. बाय कंट्रोलिंग द ट्रिगरिंग व्हाट वी आर एबल टू डू इज वी आर एबल टू वेरी द वोल्टेज, वी आर एबल टू वेरी द एवरेज वोल्टेज. पहले V1 थी, V2 है, ऑन टाइम बढ़ा लेंगे वोल्टेज बढ़ जाएगी, लेकिन कभी भी वो V से कम रहेगी. इसलिए दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड स्टेप डाउन चॉपर, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एवरेज वोल्टेज मिलेगी वो सोर्स वोल्टेज से कम मिलेगी. ठीक है, सो बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द ऑन टाइम और ऑफ टाइम व्हाट वी कैन डू इज वी कैन वेरी द वोल्टेज. और जिस हिसाब से वोल्टेज वेरी होगी उस हिसाब से आर्मेचर करंट वेरी होगा, उस हिसाब से मोटर की स्पीड वेरी होगी. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेप डाउन चॉपर्स. So a step down chopper, the figure shows a step down chopper with the resistive load. Thyristor, it simply acts as a switch, and when the thyristor is on, supply voltage appears across the load. When the thyristor is off, the voltage across the load will be 0. So this is the same waveform which I had explained. So next, the average voltage. So the average voltage VDC is the voltage V. हमारे पास क्या था, सप्लाई वोल्टेज सी V. टोटल टाइम क्या था हमारे पास, ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम. इसमें से हमें आउटपुट पे वोल्टेज कब मिली, ऑन टाइम के लिए मिली है, ऑफ टाइम के लिए नहीं मिली. तो हमने सप्लाई कनेक्ट कर रखी थी पूरा ऑन टाइम के लिए भी और ऑफ टाइम के लिए भी, लेकिन हमें वोल्टेज कितने के लिए मिली है, आउटपुट पे कितने के लिए आती है, ऑन टाइम के लिए.
तो हमारे पास जो वैल्यू निकालनी है हमने एवरेज वैल्यू की, वो क्या होगी कि टोटल टाइम, मतलब अगर जैसे हमारे क्लास में 10 स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके एवरेज मार्क्स निकालने होते हैं, हम क्या कहते हैं, सभी के मार्क्स ऐड कर लेते हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जितनी देर के लिए वोल्टेज आई उसको डिवाइड बाई, मतलब जितनी वोल्टेज हमें मिली डिवाइड बाई कितनी देर के लिए हमारे पास वोल्टेज थी। तो हमारे पास टोटल टाइम के लिए थी, ऑन टाइम में भी इनपुट वोल्टेज तो थी, ऑफ टाइम में भी थी, लेकिन हमें मिली कब, सिर्फ ऑन टाइम में। तो वो क्या आ जाएगा, V इंटू टी ऑन बाई टी ऑन प्लस टी ऑफ। टी ऑन प्लस टी ऑफ क्या हो गया, टोटल टाइम। सो VDC इज नथिंग बट V इंटू टी ऑन बाई टोटल टाइम। सो व्हाट इज टी ऑन बाई टोटल टाइम, इट इज कॉल्ड ड्यूटी साइकिल। सो इट इज V इंटू डी। अब VDC क्या है, VDC इज V इंटू डी। V इज कॉन्स्टेंट, डी आप वेरी कर सकते हो बाई चेंजिंग द ऑन टाइम और चेंजिंग द ऑफ टाइम। तो हमारे को फिक्स डीसी V से वेरिएबल डीसी मिल जाती है, क्योंकि वेरिएबल डीसी क्या है, V इंटू ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल को बढ़ा दोगे तो आपकी वोल्टेज बढ़ जाएगी, ड्यूटी साइकिल को कम कर दोगे तो वोल्टेज कम हो जाएगी। ओके, सो next is classification of choppers. The choppers can be classified as class A choppers, class B choppers, class C choppers, class D choppers or class E choppers, depending upon in which particular quadrant they are operating. क्लास A चॉपर और क्लास B चॉपर्स जो हैं ये सिंगल क्वाड्रेंट में ऑपरेट करते हैं। सिंगल क्वाड्रेंट में मतलब या क्लास 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेंगे या सेकंड क्वाड्रेंट में करेंगे। क्लास सी और क्लास डी जो हैं ये 2 क्वाड्रेंट्स में ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब ये एक से ज़्यादा क्वाड्रेंट में ऑपरेट कर सकते हैं, ये 2-2 क्वाड्रेंट में ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे क्लास सी जो है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ऑपरेट करता है, क्लास डी जो है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑपरेट करता है। क्लास ई है उसको आप किसी भी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में ऑपरेट करा सकते हो। सो अब हमें ये देखना है कि क्वाड्रेंट में ऑपरेट करने का मतलब क्या है।